Okay, Assalamu alaikum everyone. Now we'll have a quick review or a quick recap of what we discussed the other day. We talked about elements of fiction in the last class, I believe. Is that correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? I think we were talking about how characters, dialogues, atmosphere, settings, themes, and point of view and perspective is important. And apart from this, we also had a discussion about the plot diagram, I believe. I probably told you about the plot as well through a short story. However, quickly, I'll tell you once again what's a plot. A plot is a fictional arrangement in a story, an event that takes place, a number of events that can take place within the स्टोरी अच्छा प्लॉट डायग्राम जो उस दिन मैंने आपको आई थिंक बोर्ड पे भी बनाई होगी लुक एट दिस इज द डायग्राम दैट आई वाज रेफरिंग टू ये आपको हेल्प कर सकती है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का एनालिसिस पढ़ने में स्पेसिफिकली दिस वन इस इंफोग्राफिक में क्लियरली लिखा है कि कौन से सेक्शन में क्या आइडेंटिफाई करना है फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेक्शन इज एक्सपोजिशन who are the main characters in the beginning of the story what is the setting in the beginning of the story ठीक है इसी के साथ इन यहाँ पर इस साइड पर you will have the conflict what's the major problem in the story वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं then going upwards you'll have rising action what events happen after the exposition and before the climax what are those important actions and reactions of different characters and storyline that helps us move forward to the climax. Climax is the peak point where suspense is at the top. When does the character face their problem? जिसमें मैंने आपको शायद बताया था कि कब आर या पार होगा would be decided in the climax, right? This is the turning point of the story. Either things will stay the same or they will change. Mostly it's changing. And then you have falling action. Falling action entails where you can see that what happens immediately after taking that decision. अब एक character ने एक drastic decision ले लिया है जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन था तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो फॉलोइंग एक्शन में देखे जाएंगे इन रेजोल्यूशन what happens at the very end of the story. Some of the stories might not be able to clearly provide a resolution or an ending that might be left open for the audiences and their imagination. ठीक है? So I hope this quick recap of plot is quite sufficient for you to understand कि किस तरह से समझना है और प्लॉट कैसे जरूरी है जैसे कि in the next class you will be bringing a short story and then you will be आइडेंटिफाइंग कि कहाँ पर इंट्रोडक्शन है कहाँ पर एक्चुअली राइजिंग एक्शन है व्हाट इज द क्लाइमैक्स तो ये आइडेंटिफाई करना आपने उसमें सीखना होगा शॉर्ट स्टोरी कौन सी होगी आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू विद योर सीआर एंड यू कैन ब्रिंग दैट इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हमने बात करनी है जो उस दिन भी मैं आपको आई थिंक आई वाज अबाउट टू assign you this chapter or sections of this chapter but the time was over these are major genres in textual studies genres you've already understood what are those the first one is fiction and how fiction evolves तो ये बेटे आपने इसके नोट्स बनाने हैं ये फिक्शन क्या है how many types of fictions can be there how it is written what is included in fiction and how it evolved as a genre fiction कैसे evolve हुआ वो भी बताना है what are the features of a novel which is their attention to individualism and realism reflect basic socio-historical tendencies यानी realistic stories हैं historical stories हैं वो सारी इवॉल्वमेंट आपने इसमें बतानी होगी Now, to make it quite easier for you to follow, I'll just give you one quick review of what is a novel, ठीक है और नॉवल को किस तरह से समझना है और आगे लेके चलना है However, you should always get back to the understanding that is provided in Mario Clara, that is your textbook, और उसको follow करना is important for you. But these are the notes that I made for you so that you can understand it simple words what are we going to follow. Now, what is a novel? It's a genre.
in which you have a credible length where the characters are evolving, there is setting, atmosphere, point of view, and everything is there. एक कहानी है, नॉवल में एक कहानी होगी. These are some of the definitions of novel. A novel is a prose narrative work which is long enough to be printed as an entire book. A novel portrays characters and presents organizational, sequential actions and scenes. A novel is usually divided into smaller parts, जिन्हें units, chapters या sections भी कह सकते हैं. Writers of novels are often referred to as novelists and उन्हें authors भी कहा जाता है. A novel looks like or a novel looks at the complexities of life. Literature is a reflection of life और नॉवल में भी हम इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. Now, within the genre of novel, there are different types of genres. You can have detective knowledge, novel, romantic novel, horror, suspense, thriller, sci-fi, historical. इसके अलावा भी बेटे, there are many types of novels that could be out there. अब डिटेक्टिव नॉवेल्स क्या हैं, ठीक है, उस टाइप को हम देख लेते हैं. डिटेक्टिव नॉवल इज अ काइंड ऑफ अ नॉवल इन विच डिटेक्टिव्स आर देयर, इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, and then there is a crime such as murder or something. So certain examples are enlisted. One of them is called Murder on the Orient Express. This novel is written by Agatha Christie. She's a very famous novelist. Then Sherlock Holmes, you probably know already. It's written by Sir Arthur Conan Doyle. ये सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है ताकि आपको पता चले कि डिटेक्टिव नॉवल कैसे होते हैं, ठीक है. उसके बाद romantic novel is a kind of a novel that is definitely situated and made in Western culture, and it showcases a relationship between two people, and it also has a satisfying positive ending as well. One of the examples could be Pride and Prejudice. It's a very famous novel written by Bronte sisters, and another one is Jane Eyre. तो इनकी कहानी आप देख सकते हैं. अब Pride and Prejudice is very famous. It focuses on the societal, cultural, and comedy of manners, that how certain people of certain classes they would represent themselves in certain classes in a certain way. तो वो जिस तरह से अपने फेक मैनरिज्म को शोकेस, हिपोक्रेसी को शोकेस करने की कोशिश करते हैं. So this novel focuses on all of those problems. ठीक है. Then one of the important novels in the history is also called Wuthering Heights, which is again a romantic novel, and it focuses on the class system, that how class system comes in between two lovers and they cannot get together because classism plays an important part in it. Then Gone with the Wind is another example. देन बेटे अनदर, अब देखें एक उर्दू नॉवेलिस्ट भी हैं, रजिया भट्ट के नॉवेल्स बहुत फेमस थे जिसमें उन्होंने नायला, साइका, नाजिया, such kind of novels are there where she has mentioned romances of these female characters, and she was very famous at that time and she's still considered to be a classic. Then we have horror and suspense and thriller novels. ठीक है, इनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल शायद आपने ड्रैक्यूला, वेम्पायर वाले शोज देखे हों, सस्पेंस वाले शोज देखे हों, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखे हों, तो वो सारे कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं. हिस्ट्री में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लासिकल थ्रिलर की. द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाई, रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवंसन. ठीक है. उसके बाद एडगर एलन पो इज वेरी फेमस. He's written many short stories which are very interesting to begin with. The Fall of the House of Usher, The Pit and the Pendulum, The Mask of the Red Death, The Black Cat. अगर आप इन शॉर्ट स्टोरीज को पढ़े तो आपको एक सेंस ऑफ horror, a sense of gothic feel होता है. Then Frankenstein is very interesting. That is about how a doctor experimented with human and he tried to take different body parts from different people और उनको इकट्ठा जोड़ के उसने एक नया इंसान बनाने की कोशिश की जो कि एक मॉन्स्टर बन गया जिसे फ्रैंकेनस्टाइन कहते हैं. और अगर हम पाकिस्तानी या साउथ एशियन उर्दू की तरफ आए तो काली हवेली ऐसी ही एक खौफनाक कहानी है जो हिजाब इम्तियाज अली ने लिखी हुई है. दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक हॉरर सस्पेंसफुल थ्रिलर नॉवल कैसे होते हैं. देन कम्स दी हिस्टोरिकल नॉवेल्स. Now, of course, historical novels are based on the history events. जो भी historical events हो चुके हैं उन पर लिखे जाते हैं.
जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सर वॉल्टर स्कॉट वॉज अ प्रोफोलिक Scottish historical novelist and a poet. Ivanhoe is a historical romance set in 12th century. The Good Earth is also a historical fiction by Paul S. Buck. अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारे नॉवेल्स को मेंशन करने का क्या रीजन है। तो बेटे आपने इस तरह से इनकी कैटेगराइजेशंस को यानी टाइप्स को समझ लेना है, एंड तीन तीन चार चार लाइनों के नोट्स बना लेने हैं कि हिस्टोरिकल है तो कैसे है। हिस्टोरिकल होने के लिए जैसे पाकिस्तान से अगर कोई हिस्टोरिकल नॉवल हो, वो भी आप रेफर कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवल। ऑल्दो वी आर कंसर्न्ड विद ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर ओनली, दैट शुड बी आवर फोकस, बट इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप थोड़ा बहुत इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल नॉवल में ये बहुत फेमस है, वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय, द स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हॉथॉर्न, A Tale of Two Cities, The Great Expectations, Oliver Twist. चार्ल्स डिकेंस इज वेरी फेमस फॉर हिस्टोरिकल नॉवल बिकॉज वो अपने नॉवेल्स में वही चीजें मेंशन करता है जो हिस्टोरिकली विक्टोरियन एज में हो रहे थे। देन आग का दरिया बाय कुरतुल एंड हैदर इज देयर, नसीम हिजाजीज, मोहम्मद बिन कासिम, आखिरी मार्का, कैसर और किसरा एंड काफिला हिजाज। ये यहाँ पे मेंशन करने का रीजन ये है कि ये हिस्टोरिकल नॉवल इस तरह के हिस्ट्री इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल, लाइक एनी अदर स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ राइटअप। हर राइटअप और स्पोकन फॉर्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेटे यू हैव अ बिगिनिंग, यू हैव अ मिडल पार्ट एंड देन यू हैव अ कंक्लूजन। अभी मैंने आपको प्लॉट डायग्राम बता दी है, ये अगेन आपको उसी तरह से बता रहे हैं कि इन तीनों सेक्शंस में क्या बात होती है। देन कम्स द एलिमेंट्स ऑफ नॉवल विच इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, जो हमने उस दिन बात की थी, प्लॉट, सेटिंग, करेक्टर, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल। इसमें से बेटे अगर आप, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी पार्ट ऑफ इट, प्लीज लेट मी नो। अगर आपको समझ आ गया, गुड। अगर आप चाह रहे हैं तो इसके फर्दर हम बात कर सकते हैं। बताएं कौन सा पॉइंट आपको इसमें से नहीं समझ आया। ये एलिमेंट्स ऑफ नॉवल है। मैम सेटिंग एक्सप्लेन कर दें प्लीज। इसके और पॉइंटर्स भी हैं लेकिन ये बेसिक हैं। हाँ बेटे क्या कह रहे हो। मैम सेटिंग एक्सप्लेन कीजिए। सेटिंग्स यानी टाइम एंड प्लेस, कि कहाँ पर ये अकर हो रहा है, कौन सा टाइम है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, कोई अगर सेंचुरी मेंशन्ड है, कोई ईयर मेंशन्ड है, कोई डेट मेंशन्ड है तो वो सेटिंग में आपको मिल जाएगी। अच्छा, एटमॉस्फेयर भी सेटिंग में आता है, लोकेशन भी आ जाती है कि बेडरूम है, कि एक जंगल है, कि विल्डरनेस है, कि वॉशरूम है, तो ये सब कुछ सेटिंग में आ जाएगा। मैम करेक्टर भी एक्सप्लेन कर करेक्टर्स, जो करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शायद उस दिन मैंने आपको बताया हो, मेजर एंड माइनर करेक्टर्स कुड बी देयर। मेजर करेक्टर्स आर दोज करेक्टर्स हु आर गोइंग टू receive some kind of treatment and they are going to show a significant change in their behavior, actions and reactions. Minor characters, on the contrary, are the characters who do not change, who stays the same on all levels. तो वो characters में आ जाए। Without characters, plot cannot progress. Characters नहीं होंगे, अगर एक करेक्टर कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं देगा, दूसरा करेक्टर का एक्शन रिएक्शन नहीं आएगा, तो कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ a novel or fiction itself. Excuse me, ma'am, would you like to share something about point of views so पॉइंट we ऑफ can व्यू बेटे, understand and get that? हाँ जरूर। पॉइंट ऑफ व्यू के भी ना टाइप्स हो सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इफ आई यूज पर्सनल प्रोनाउन, कि मैंने एक कहानी लिखी है और उसमें जो है आई यूज हो रहा है, तो वो पर्सनल यानी फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी थर्ड पर्सन नरेशन इज जहां पर आपको जो करेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, कि ऐसे लिखा जाए कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड ही हैड अ डॉटर। तो वो एक नरेशन की तरह आपको थर्ड पर्सन में बताए जाते हैं। फिर आ जाता है ड्रामेटिक टेक्निक होती है इसमें, जहाँ पे आपके पास ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कि एक करेक्टर की डेथ हो रही है लेकिन डेथ होते होते वो इतने ड्रामेटिक एक्शंस ले रहा है और उसको डिफाइन किया जा रहा है कि द ब्लैक काउ was standing beside it and the hero was shot. After the shot, he heard it and he explained it to his mind and heart that he's been shot and he was feeling the pain. अब ये ड्रामेटिक है। एक तरीका सिंपली है कि मैं कह दूं एक करेक्टर को गोली लग गई और वो खत्म हो गया, लेकिन उसको ड्रामेटिक बनाने के लिए उसमें मेलोड्रामा, उसमें एग्जैजरेशन, हाइपरबोली को ऐड किया जा सकता है। फिर बेटे एक और किस्म का नरेटर भी होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वो दोनों साइड्स को
रिप्रेजेंट करेगा, दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं से दिखाएगा कि एक करेक्टर ये सोच रहा है तो दूसरे करेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव नरेटर्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे एक नरेटर जो टाइप का होता है उसको कहते हैं ओमनिस्ट नरेटर, जो कि ओमनिसेंट होता है, यानी वो अम, ऐसी फिगर होता है, ऐसी किस्म का पोइटिक पर्सोना या माउथ पीस होता है कहानी में कि वो सब कुछ जानता होता है, वो हर डायरेक्शन से उसे पता होता है कि क्या चल रहा है। दैट इज एन ओमनिसियंट नरेटर फॉर यू। ठीक है। फिर आ जाता है पार्शियली ओमनिसियंट, तो ये भी उसका हाफ वे होता है, जिसके पास हाफ नॉलेज होती है, कि उसको एक साइड तो पता है और दूसरी साइड नहीं पता होता। नरेटर्स एंड नैरेटिव टेक्निक्स कुड बी दिस। अच्छा, आज के मॉडर्न जमाने में सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। वो कैसे इस्तेमाल होता है? वो जो सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं होती जिसमें लिखा होता है कि लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। तो ये जो यूज यूज होता है, इसमें जो ऑथर है वो डायरेक्टली अपने रीडर्स को पॉइंट करता है, एड्रेस करता है, तो वो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू यानी सेकंड नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वे इन विच द रीडर इज प्रेजेंटेड विद द स्टोरी। कि अगर एक करेक्टर ने नेगेटिविटी दिखानी है तो उसके इंटरनल थॉट्स में डिस्क्रिप्शन ये दी जाएगी, एक नरेटर बोलेगा कि वो ये सोच रहा था कि वो उस लड़की का कत्ल कर दे क्योंकि वो मान नहीं रही। तो वो हमें पता चल जाएगा कि करेक्टर के माइंड में ऐसे इवल थॉट्स हैं और वो इस तरह से सोच रहा है। दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ व्यू। First person, like I told you, personal pronouns would be used such as I, me, mine, we and our. और नरेटर ही जो है वो मेन कैरेक्टर होता है। थर्ड पर्सन में वी यूज ही, शी, इट, यानी नरेट किया जाता है आउटसाइड द नरेशन इटसेल्फ। ठीक है। और इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जो मैं दे चुकी हूँ यहाँ पर मेंशन्ड है। और बेटे एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस लिस्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू शेयर विद यू? मैम प्रीवियस टाइम आपने एक टर्म यूज किया था नोवेला, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। बेटे कैन यू रिपीट? योर वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग। मैम प्रीवियस टाइम आपने नोवेला के बारे में कुछ बताया था, प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दें। क्या बताया था? किस पर्सपेक्टिव से? नॉवेल के बारे में कह रहे हैं? यस मैम, फिक्शन में बताया था नोवेला। नोवेला? अच्छा, नोवेला, नोवेला नहीं है बच्चे, इट्स नोवेला। वो भी मैं आपको बताती हूँ। नोवेला इज यू नो अ शॉर्ट वर्जन ऑफ नॉवेल। ठीक है, मैं आपको नोवेला बता भी देती हूँ, एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली एक नोवेला पढ़ा, इट्स रिटन बाय फराज तल्लत, ही इज अ बायोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान एंड इट्स कॉल्ड द 74। अब ये एक साईफाई फिक्शन है और ये बहुत पतली सी छोटी सी 70 पेजेस का नॉवेल है, बहुत छोटा सा नॉवेल है। तो वो नॉवेला होता है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट नॉवेल्स की एग्जांपल दे देती हूँ। एक सेकेंड। अच्छा देखिए, ये जो हैंड आउट है ये मैं पोस्ट भी कर दूंगी, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। The novella is a short and well-structured narrative, just like the novel itself. ठीक है, often realistic and satiric in tone, that influence the development of short story and novel throughout the Europe. इसमें anecdotes भी आ सकते हैं, legends भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रोमांटिक टेल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे मेंशन है, द लिटिल प्रिंसेस, द लिटिल प्रिंस, द टाइम मशीन, ऑफ माइस एंड men, A Christmas Carol, and Old Man in the Sea. These are the examples of novellas. नॉवल जो है वो एटलीस्ट कंसिडरेबल लेंथ का होना चाहिए। कंसिडरेबल लेंथ का मतलब कि वो एक फैट बुक होनी चाहिए, उसमें काफी चैप्टर्स एंड यूनिट्स होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉवेला में कम होंगे। अगर नॉवल में 25 चैप्टर्स हैं तो नॉवेला में 10 होंगे। ठीक है। Novel is a fictional prose narrative of book length, typically representing characters' actions with a degree of some kind of realism, while novella is a fictional prose narrative that is longer than a short story but shorter than a novel. तो नॉवेला एक ऐसी चीज है जो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल के बीच में आती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉवल जो है वो 200 पेजेस होगा और नॉवेला उससे कम होगा। लाइक आई टोल्ड यू, रिसेंटली एक साईफाई फिक्शन मैंने पढ़ी, उसके 70 पेजेस थे, तो वो एक नॉवेला है। और बेटे एनी क्वेश्चन? अच्छा, अभी आप में से किसी ने पूछा था
कि व्हाट इज अ सेटिंग। तो सेटिंग के ये तीन एलिमेंट्स हैं, प्लेस, टाइम एंड एनवायरनमेंट, कि कहाँ पर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, और किस किस्म का वेदर, साउंड्स और एनवायरनमेंट इंडल्ज्ड है। तो ये सब कुछ बेटे सेटिंग में आ जाएगा। फिर करेक्टर की मैंने आपको बताए थे, मेजर एंड माइनर करेक्टर्स भी बताए थे, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, करेक्टर के बारे में चल रहा है। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, when we talk about character, can character only be a human or anything else? A character can be a building as well. If we take a short story which is more based on how that building took away all the lives, तो वो जो बिल्डिंग है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, सीमेंट से बनी है, वो भी करेक्टर हो सकती है। ये डिपेंड करेगा मैम नैरेटिव एनिमल्स भी टेक्निक। कैरेक्टर में आ सकते हैं। क्या बेटे? एनिमल्स भी कैरेक्टर में आ सकते बिल्कुल, हैं। एनिमल्स भी करेक्टर्स में आ सकते हैं। फेबल्स पढ़ी आपने कभी? डू यू नो व्हाट इज अ फेबल? नो मैम। मैम एनिमल फार्म अगर हम देख ले, उस नावल में कैरेक्टर्स है जो कि एनिमल्स हैं। एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल में एक्चुअली वो एक क्रिटिक है, वो एक सैटिरिकल अकाउंट है अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। जॉर्ज ऑरवेल ने जो विटनेस किया, तो उसने डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगराइजेशंस में रखा, कि उसने चिकन को दिखाया कि ये वाला पॉलिटिकल लीडर है, हैन दिखाई, रैट दिखाया, तो हर एनिमल के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स थे, और उसके मुताबिक उसने उसमें करेक्टर्स को लाइट में भी बताया। इसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू read a fable for you. Fable makes it very understandable for you to understand. Wisdom literature में चौथी या पांचवी जमात के बच्चों को probably ये पढ़ाई जाती हैं fables. Let me see that if I can find a shortest one, ताकि आपको पता चले कि characters animals भी होते हैं। हाँ, one second. जैसे कि एसॉप की जो फेबल्स हैं, शायद पता हो आप में से किसी को। अच्छा, वो तो कहानी सुनी होगी ना, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो सुनी हुई है? वो जो बेटे कहानी होती है उर्दू में, शेर आया, डू यू नो दैट स्टोरी? यस मैम, यस मैम। Yeah, यस मैम। व्हाट इज दैट स्टोरी? क्या है वो कहानी? डू यू रिमेम्बर द स्टोरी? वो मैम एक शेपर्ड होता है और वो बकरी चराता है जंगल में, और लोगों के वो धोखा देते हैं कि शेर आया, इस वजह से तो दूसरे दिन वो इस तरह हरकत करता है कि शेर आया, और लोग उसके धोखे में नहीं चले जाते हैं, और हकीकत में शेर आया होता है। इसकी सारी बकरी जो है वो ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देयर इज दिस शेपर्ड बॉय, और every other day for 2 to 3 days he will continuously go to villages and tell them that there is a lion or a large animal in the jungle and he's scared. Everybody would gather up and try to help him. After third or fourth try he still does that, and at this time actually lion और एक जानवर आ जाता है, लेकिन अब villagers का उस पे से यकीन उठ गया होता है, तो वो उसे हेल्प करने नहीं आते। तो इस तरह की जो मोरलिस्टिक स्टोरीज होती हैं, इसमें ह्यूमंस भी हो सकते हैं और इसमें एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पोएम्स भी होती हैं ऐसी, अ, जैसे कि मैं ये बुक खोलने, बेटे इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम, मैं आपको एक पढ़कर बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एनिमल्स को भी करेक्टर्स समझा जा सकता है। ये देखिए ओपन हो गई है, यस। अच्छा, ये वाली कहानी शायद आपने सुनी हो, द फॉक्स एंड द क्रो। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू, लुक एट दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ फेबल। ये एसॉप के फेबल्स हैं, ये 45 हैं इन नंबर, एंड दे आर वेरी फेमस, एंड दे हैव moralistic teachings, they have a theme that can be taught in one way or another. अब देखिए ये कहानी हम पढ़ते हैं। A fox once saw a crow fly off with a piece of cheese in its beak and settle on a branch of a tree. That's for me, as I am a fox, said Master Reynard, and he walked up to the foot of the tree. Good day, Mistress Crow, he cried. How well you are looking today! How glossy your feathers! How bright your eye! I feel sure your voice must surpass that of other birds, just as your
figure does. Let me hear but one song from you that I may greet you as the queen of birds. The crow lifted up her head and began to caw her best. But the moment she opened her mouth, the piece of cheese fell to the ground, only to be snapped by the master fox. That will do, said he. That was all I wanted in exchange for your cheese. I will give you a piece of advice for future. Do not trust flatterers. Do you understand the story? कहानी समझ आई? हम्म Yes, ma'am. क्या है कहानी? Can you restate it in simple words for your classmates because they can't listen, उन्हें नहीं समझ आती? दोबारा बताएं ना एक दफा. अच्छा, इसका एक मॉरल भी है. देखिए, एंड में उसने खुद ही बोल दिया एसॉप ने, थ्रू अ करेक्टर. दोनों करेक्टर्स, क्रो एंड फॉक्स, दोनों ही एनिमल्स हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो सिंबलाइजिंग, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन वे. देखें, जब हमें किसी से कोई चीज चाहिए होती है, कोई फेवर चाहिए होती है, हमें उनसे कोई काम निकलवाना होता है, व्हाट डू वी यूज फ्लैटरी. हम कहते हैं आज तुम बहुत अच्छे Yes, लग ma'am. रहे हो, आज तुमने इतना अच्छा प्रिंट पहना हुआ है, यार तुम्हारी वॉच तो बहुत अच्छी है, अच्छा बात सुनो, मैं 2 दिन के लिए बोरो कर लूं. फिर वो वॉच ले जाता है बंदा और फिर वापस ही नहीं करता, और अगर वापस करता है तो टूटी हुई हालत में करता है. तो फ्लैटरी इज ए मैनिपुलेशन इन डिस्गाइज. अब ये जो मैनिपुलेशन है और फ्लैटरी है, अब एनिमल्स तो हमारी राइटफुल माइंड में नहीं ना करते, ये तो ह्यूमंस ही करते हैं. Isn't that Yes, so? ma'am. तो बहुत सारे करेक्टर्स फेबल्स में, विजडम लिटरेचर में बहुत इजीली रिप्रेजेंट. आप तो प्रोबेबली वो कोर्स भी पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन टू आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, उसमें यही कुछ पढ़ाया जाता है ना. Yes, ma'am. So you know that characters can be animals. These characters symbolize human conditions. They can be the mouthpieces of human conditions in one way or another. So yes, characters can be animals. They can be. अब एक, अगर मैंने एक कहानी लिखनी है और वो ग्लास की कहानी है, ग्लास मतलब जिससे हम पानी पीते हैं, तो उसकी भी तो कहानी हो सकती है ना. ग्लास कह सकता है कि मैं एक ग्लास हूँ और Yes, ma'am. मैं एक अच्छे क्वालिटी के शीशे से बना हूं, लेकिन लोग मेरे में पानी और जलती उबलती कॉफी भी डालते हैं. अब वो उसकी आप बीती हो जाएगी, वो फिर भी एक सेंट्रल कैरेक्टर होगा. एक जो गायें हैं, गाय और बकरी की भी एक कहानी होती है ना. एक, आई थिंक देयर इज अ पोएम बाय इलामा इकबाल जो चिल्ड्रन के लिए यूज भी होती है, अ काउ एंड अ गोट. उसमें वो दोनों अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रही होती हैं, और उसका यही मतलब होता है कि दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, कि जो लोग हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं, एंड देन वो लोग जो हर जगह पॉजिटिविटी देखते हैं. तो करेक्टर्स किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है. मेजर एंड माइनर करेक्टर्स उस दिन हमारी हमारी बात हुई थी. अच्छा, जो मेन लीड होता है, जिसे हम हीरो कहते हैं, उसके लिए एक फैंसी वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, ठीक है. और जो विलन होता है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एंटैगनिस्ट. ये आपने याद रखना है, ताकि पेपर में अगर ऐसे वर्ड्स आए तो आप इन्हें हैंडल कर सकें. फिर स्टैटिक करेक्टर, राउंड करेक्टर, डायनेमिक करेक्टर, ये मैंने आपको उस दिन बताए थे. फ्लैट करेक्टर भी बताया था. हाउएवर, स्टॉक करेक्टर वाज नॉट डिस्कस्ड. इट्स अ टाइप ऑफ अ करेक्टर हु has become conventional or stereotypical through the repeated use in particular types of story. स्टॉक करेक्टर वो एक स्टॉक की तरह है जो हमेशा हर स्टोरी में किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके सेम फीचर्स होंगे, एक ही तरह का वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा. फॉइल करेक्टर is usually an important supporting character. फिर सिंबॉलिक करेक्टर, लाइक मैंने आपसे कहा, कि हो सकते हैं जो सोसाइटी के इवल्स को किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स कुड बी इन देयर इन द स्टोरीज. अब ये कुछ बहुत फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम द हिस्ट्री. स्कारलेट ओहारा, एलिस इन द वंडरलैंड, हेडी, जूलियट जो है रोमियो जूलियट से, एलिजाबेथ बेनेट फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस. अच्छा, इसको पढ़कर परेशान होने की बात नहीं है, ये कुछ सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं. इसमें से आप 2-3 की कहानियां पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी समरीज पढ़ सकते हैं, ताकि आप इनका रेफरेंस दे सकें, ठीक है. ऑलिवर ट्वेस्ट, ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, तो ये सारे नॉवेल में आ जाएंगे. फिर करेक्टराइजेशन इज अ टेक्निक, उस दिन हमने शायद बात भी की थी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नॉवल और अ शॉर्ट स्टोरी इज करेक्टराइजेशन. Characterization is a way in which a writer
brings their fictional creation to life, कि वो रीडर को कैसे बताता है कि वो किस तरह से, रीडर क्या फील कर रहा है, क्या एक्शंस करने चाह रहा है, किस किस्म के रिएक्शंस देने वाला है, वो करेक्टराइजेशन के थ्रू होता है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ करेक्टराइजेशन, जिसमें हमारे पास फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डायलॉग, एक्शंस, थॉट्स एंड जजमेंट बाय अदर्स आ जाती है। ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, ये एक करेक्टर स्केच लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी, इट्स कॉल्ड दादा जान। ठीक है, ये हम डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ऑन कैंपस। ठीक है, मैं आपके सीआर को, जीआर को ये भेजूंगी, तो आपने इसका प्रिंट ले आना है, ताकि क्लास में पढ़कर हम इसे वहीं पर इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फिर आ जाती है बेटे थीम। थीम इज द मेन आइडिया ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। A novel could have multiple themes in it. Theme is a central idea, but it's not something that is a topic or a subject of the novel. Theme is important because it helps us to recognize the difference between theme of a literary work and subject of a literary work. ठीक है, for example, the subject of the story might be war, while the theme might be the idea of war is useless. अगर कहानी वॉर पे लिखी है तो वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसको किस डायरेक्शन में लिखा गया है वो डिसाइड करेगा कि वो थीम है कि नहीं। For example, these are some of the universal themes across the literature: good versus evil, a great journey, mystery, conflict with nature or God, conflict with science, science versus spirituality, friendship, family, love, etc. तो ये जो चीजें हैं ये definitely theme में होती हैं। और plot is a sequence of event and theme जो है वो उस plot में revolve करता है या evolve करता है। ठीक हो गया। Here are some ways to uncover the theme of the story. सबसे पहले आप टाइटल देख सकते हैं, करेक्टर्स के थ्रू पता चल सकता है, एक्शंस एंड रिएक्शंस के थ्रू पता चल सकता है, सेटिंग के थ्रू पता चल सकता है, और किस टोन में यूज किया जा रहा है उससे पता चल सकता है। ठीक हो गया। And then comes style. Style is created by writers when they use certain words. उनके पास choice of words होती है. It also includes tone and attitude of the writer. How words and phrases are embedded, how it affects the readers and their mentality and understanding, तो वो सारा कुछ style में आ जाता है। ठीक है। Diction is language, syntax is structure. उसके बाद टोन एंड डायलॉग आ जाता है। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, टाइप्स ऑफ नॉवल, elements of novel and certain famous novels in the history that are there, जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा बेटे, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें आप। जी कुरुतुलैन बताएं बेटे। मैम ये जो Excuse me, आपने ma'am. Sorry. नॉवेल के नेम बताए हैं, हम्म मैम ये हम याद रखने पड़ेंगे या हम लोग खुद से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं नॉवेल? आप दे सकते हैं, मैंने ऐसा ही कहा ना कि अगर आपने हिस्टोरिकल नॉवल का रेफरेंस देना है तो एक या दो के नाम आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सारे नहीं। ये देखिए, इनलिस्ट करने का रीजन ये है कि जो इसमें से आपको बेहतरीन समझ आए। आई वुड रिकमेंड कि जब आपने रोमांटिक नॉवेल्स को अगर किसी के बारे में पढ़ना है तो आप जेन ऑस्टन का कोई भी नॉवल ले लें, क्योंकि वो फ्यूचर में आपने वैसे भी पढ़ना ही है, तो थोड़ी यस मैम। अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो जाएगी। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। Sorry for bothering you. Would you please share this slide to the group so that we can get all this and we can Numan, make easily by notes? Yeah. Numan, it's already available in Google Classroom, beta. You can always access it. Oh, that's it. सब कुछ मैं उधर से Okay, ही ma'am. ओपन कर Thank you. रही हूँ, अगर आप देखो ना, ये बेटे आपके Yeah. गूगल क्लासरूम है, इसमें क्लास वर्क को क्लिक करोगे ना तो यू विल फाइंड एवरीथिंग। तो मैं ये इधर से पढ़ रही हूँ, फिक्शनल, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, टाइप्स एंड Actually, ma'am, एलिमेंट्स it's a ऑफ। limited. We can't open it without any internet access. So I would like, so sometime we are at a place where we can't access the दैट्स internet. योर कॉल, So दैट इज that's योर why I'm looking प्रोरोगेटिव forward एंड to seeing दैट्स this योर in the इशू group. टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर। वो आपको देखना है बेटे। ठीक है, वो आपको सोल्यूशन उसका ढूंढना है, आप इसे डाउनलोड करके रख लो, इट्स डाउनलोडेबल। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं मारियो So we क्लारर can की download from the site. साइट। क्या इधर से डाउनलोड करोगे ना, अगर आप अपने फोन पे इसे ओपन करो, ठीक है, ओपन इन अ न्यू टैब करोगे तो साथ ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी नजर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बेसिक
इंटरनेट स्किल्स हैं, ये तो आनी चाहिए। देखो ये इस तरह का निशान आपको डाउनलोड करवा देगा, इसमें क्या है बेटे, टू इजी। दिख रहा है, कैन यू सी इट? Got it, ma'am. Got it. Thanks a lot. ठीक, ओके। आप सभी बेटे ऐसे इसको डाउनलोड Hmm. करके अपने फोन में रख सकते हैं। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि इसके प्रिंट ही ले लो, इन 2-3 चैप्टरों के प्रिंट ही ले आओ। नहीं यूज करनी आ रहा मोबाइल, अंडरस्टूड, प्रिंट ले लें, दैट्स इजियर टू हैंडल। एंड ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स होती है ना, ये एक प्रेजेंटर के लिए होती है, ये याद करने के लिए नहीं है। इधर से आपने सिर्फ आइडियाज लेने हैं, उस जो चीजें याद वगैरह और समझनी है वो आपने यहाँ से करनी है। अच्छा, अब फिक्शन के एलिमेंट्स आपको पता चल गए, विद इन फिक्शन नॉवल के टाइप्स आपको पता चल गए हैं, उसके एलिमेंट्स पता चल गए हैं, प्लॉट डायग्राम आपको समझ आ गई है, टाइप्स समझ आ गई है। अब फिक्शन कैसे इवॉल्व हुई, यानी हिस्ट्री में किस पॉइंट से फिक्शन स्टार्ट हुई थी और किस पॉइंट पे जाके पीक पे गई है, ये अब आपने पढ़ना है, ठीक है। ऑल्दो ये मैं बहुत मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आई वुड लाइक टू टेल इट वंस मोर सो दैट यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। For example, although the novel emerged as the most important form of prose fiction in the 18th century, this is your cue कि नॉवल जहां से पीक पे जाता है, जहां इसे रिकग्निशन मिलती है, वो 18th सेंचुरी है। लेकिन इससे पहले there are some texts, some literary texts that could be categorized under fiction as well. हमें जो हाइटेंड और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स मिलेंगे वो 18th सेंचुरी में ही मिलेंगे, लेकिन ओवर द नाइट तो नॉवल एज अ जॉनरा डेवलप नहीं होता ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड सेंचुरीज। तो उसके लिए वो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही बता रहे हैं। फिर कुछ वर्क्स मेंशन्ड हैं वो आप पढ़ सकते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिशनल एपिक्स center around a hero who has to fulfill a number of tasks of national और cosmic significance। अब वो होमर की एपिक्स की बात करें, एपिक्स उस दिन भी मैंने आपको बेओवल्फ का एक रेफरेंस भी दिया था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से। ऑल्दो वो एक पोएम है, लेकिन वो भी एक कहानी के तौर पे बताया जा रहा है। अब होमर जो है, होमर इज ऑल्सो एन एंशियंट राइटर हु वाज देयर इन 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, एंड इलाइड एंड द ओडिसी, ये उसके वर्क्स के नाम हैं। तो मिडीवल एपिक्स सच एस डांटे, एलेगरीज, इटालियाना, दिविया कॉमेडिया, ये सारे वर्क्स के नाम है जिनके इंग्लिश वर्जन्स, डिवाइन कॉमेडी भी मेंशन्ड है। दीज आर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एपिक्स, ठीक है, जिनमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी हमने नॉवल के पढ़े हैं अवेलेबल थे। Classical epics, in particular, through their roots in myth, history, and religion, reflect a self contained worldview of particular periods and nationalities. So does the novel. कोई भी नॉवल, जैसे एक हिस्टोरिकल नॉवल है, उसमें एपिक स्टोरी हो सकती है किसी किसी जंगजू की, किसी रूलर की, किसी किंग की, तो वो इसी तरह से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक और कैटेगरी क्लासिकल एपिक्स, फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आएगी बेटे ट्रेडिशनल एपिक्स। दे वर रिटन इन वर्स। वर्स क्या होता है, यानी पोइटिक फॉर्म में लिखे गए थे। दे वर क्लियरली डिफरेंट एंड दे वर एबल टू डिस्टिंग्विश themselves फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बाय लेंथ। ये जो ट्रेडिशनल एपिक्स थे, ये लेंथी थे। पोएम जो होती है वो मैक्सिमम 300 लाइंस की होगी, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल एपिक्स थे, इट वाज इवन लॉन्गर देन दैट, जहां पर नैरेटिव स्ट्रक्चर, करेक्टर्स, प्लॉट पैटर्न्स वर देयर, ठीक है, एंड दे वर टुगेदर विद द रोमांस। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल एपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर they are moving forward to classical times, but as early as in the middle or in the late times of Middle Ages, the Romance established itself in an independent genre. So Middle English literature, if you remember, हमने quickly जो periods थे, यानी eras या movement थे अपना इंग्लिश लिटरेचर के, मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था। लेट मी शो यू वंस अगेन सो दैट यू कैन फॉलो एज वेल। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, गिव मी अ मिनट, कि हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड मिड इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन की थी। एक क्विक रिकैप आपको देती हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू। वेट प्लीज। ये आ गया जी, that's the second chapter.
One more minute. मैम थोड़ा subtitle है। आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताएं। मैम इस लेक्चर का आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है? यस, ठीक है मैम, बाद में फिर सेंड कर देना। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। याद है उस दिन हमने ऑन कैंपस इसकी बात भी की थी। देखिए, ओल्ड एज यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास सेलिएंट फीचर्स हैं और बेओवुल्फ है। तो पोएम्स वर फेमस इन ओल्ड एज। पोएम्स, लेकिन पोएम्स कैसी थी? नैरेटिव थी, उसमें एक हीरो था, उसमें एक क्लाइमेक्स था, उसमें एक बिगिनिंग थी। तो वो एपिक पोएम्स थी। तो वही रेफरेंस वो यहाँ पर दे रहा है। कहाँ पर? मारियो क्लैरर की बुक में। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम, आ रही है। नाउ गोइंग बैक टू Yeah, ma'am, get it. मारियो क्लैरर्स बुक, जहां पर वो कह रहा है कि मिडल एजेस में रोमांस एस्टेब्लिश हो गया था एज एन इंडिपेंडेंट जॉनरा। नाउ गोइंग बैक टू द बुक दैट आई शेयर्ड विद यू, मिडल एजेस में क्या हुआ था? इट इज रिमेम्बर्ड एज डार्क एजेस। इट इज लेस क्रिएटिव because it has certain problems in the, because बहुत सारी transitions थी, बहुत सारे conquest थे and etc. लेकिन मिडिल एजेस के बाद ही, right after Normandy and conquest of Normandy and printing press and all the French people and Vikings fighting with each other, came the romances. ठीक है, ये फ्रेंच एंड लैटिन से आए and they finally came in, and the basic theme was the romance of middle ages, adventures of knights, honor of the queen. और यही बात आपको मारियो क्लैरर भी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिक्शन के बारे में यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कैसे मिडिल एजेस में रोमांस सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो गया था और अकर हो गया था। एंशियंट रोमांसेस सच एज Golden Ass were usually written in prose, while medieval works of genre used verse form. यानी पोएटिक फॉर्म भी थी और वर्स फॉर्म भी थी और प्रोज फॉर्म भी थी। फिर उसके बाद ये बहुत फेमस एक 14th सेंचुरी का एक रोमांस है, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। इसकी एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो आपको कहानी पता चल जाए कि ये कैसी कहानी है। या आप बाद में भी देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम है तो सही। इस तरह से बेटे आपने इसको पढ़ना है। कैसे? कि यू ट्राई टू बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप उसे पहले पढ़ लें, इस तरह इजी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद मारियो क्लैरर पे वापस आए, ताकि आपको पता चले मारियो क्लैरर किस चीज के बारे में बात कर रहा है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड मारियो क्लैरर। ठीक है, दिस इज दी स्टोरी ऑफ सर ग्वेन एंड दी ग्रीन नाइट। ठीक है, इस कहानी को देखें। अच्छा, ये शुरुआत देखें कैसे हो रही है। रेपुटेशन इज व्हाट अदर पीपल नो अबाउट यू, ऑनर इज व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ। सो इसमें एक मोरलिस्टिक टीचिंग भी है अगेन। अच्छा, प्लीज कंफर्म ऑडिबल और विजिबल है आपको? दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है बेटे? Yes, ma'am. चलिए, लेट्स वॉच दिस। शॉर्ट सी स्टोरी है, ऑल्दो वही बात है कि वर्स फॉर्म में भी है, पोएटिक फॉर्म में भी है, लेकिन कहानी तो है ना। तो नॉवेल की बेसिस को बनाने में इन कहानियों ने कंट्रीब्यूट किया। It was Christmas time in Camelot, and King Arthur was throwing a party. The entire court was invited, save the wicked sorceress Morgan Le Fay, and food and drink flowed freely. But in the midst of the revelry, the castle doors split open. A towering knight, riding an emerald steed, burst into the room, stunning the court into silence. Then, in a deep, bellowing voice, he proposed a game. The Green Knight declared he would allow the bravest warrior present to attack him with his own axe. If they could strike him down, they would win his powerful weapon. However, the knight would be allowed to return that blow in 1 year and 1 day. Arthur and his knights were baffled. No man could survive such a strike. The Green Knight began to mock their leader's hesitance, and Arthur stood to defend his honor. But as soon as he gripped the axe, another leapt to take his place. Arthur's nephew, Sir Gawain,
took the weapon instead, and with one swift strike, he beheaded the grinning knight. But the moment his skull met the ground, it began to laugh. The Green Knight collected his head and mounted his horse. As he rode off, his severed head reminded Gawain of their contract and told him to seek the Green Chapel 1 year hence. In the months that followed, Gawain tried to forget this bizarre vision, but despite the strangeness of the knight's game, he was determined to act honorably. When the following winter approached, he set out, enduring foul weather and beastly encounters in his quest to find the mysterious Green Chapel. Finally, on Christmas Eve, he saw a shimmering castle on the horizon. The castle's lord and lady were thrilled to help such an honorable guest and informed him that the Green Chapel was only a short ride away. They implored Gawain to rest at their home until his meeting with the Green Knight. Thrilled at this news, Gawain happily accepted their offer. However, in exchange for their hospitality, the lord made a strange request. Over the next 3 days, he would go hunting and share his spoils every night. In return, Gawain must give him whatever he'd gained during his day at the castle. At first, Gawain was perplexed by these strange terms, but the lord's meaning became quite clear the next day, when his wife tried to seduce Gawain. To rebuff the lady's advances without offending her honor, Gawain allowed 1 kiss, which he then passed on to her husband in exchange for a slain deer. The next day, Gawain allowed 2 kisses, which he gave to the lord for a dead boar, but on the 3rd day, the lady offered more than just 3 kisses. She presented a magical sash that would protect Gawain from the Green Knight's blade. Gawain accepted immediately, but that evening, when the lord returned, the knight offered only 3 kisses, with no mention of his enchanted gift. The next morning, Gawain rode out to the Green Chapel, a simple mound of earth where the Green Knight ominously sharpened an axe. With the sash's protection, Gawain approached stoically, determined to honor his agreement. He bowed his head for the deadly blow, and with a massive swing, the Green Knight cut Gawain's neck, inflicting nothing more than a flesh wound. Once more, Gawain was bewildered. Why hadn't the sash protected him, and why hadn't the knight killed him? Bursting into laughter, the Green Knight revealed himself to be the castle's lord, and he'd been working with Morgan Le Fay to test the honor and bravery of Arthur's knights. He was impressed with Gawain's behavior, and he'd planned to spare his neck entirely until Gawain concealed the sash. Filled with shame, Gawain returned to Camelot. But to his surprise, his companions absolved him of blame and celebrated his valor. Struggling to understand this strange journey, it seemed to Gawain that perhaps the whole world was playing a game, with rules more wild and bewildering than any man could understand. Did Gawain and the other knights of the Round Table ever really exist? Uncover the origins of the... You see how it is a romance? For some of you, this could be a little difficult to comprehend because, in my understanding, most of you do not enjoy literature at all. But if you look at it, at that time in Middle Ages, the romances were based on chivalry, how men could represent themselves, how knights kaun hote hain? Soldiers, they could be knightly heroes, and then there are certain supernatural elements to explore this love and courtly कोर्ट या कोर्टली measurements जो वो ले रहे हैं, तो इस तरह के romances हुआ करते थे in Middle Ages, जिसकी बात मारियो क्लारर अपनी बुक में भी कर रहा है कि Sir Gawain and the Green Knight were such Arthurian romances. Despite its verse from its eventful episodes, the romance is nevertheless considered a forerunner of the novel, mainly because its tendency toward a focused plot, unified point of view is there. ठीक है, तो अब ये जो रोमांस है ये वर्स में लिखा गया है. ठीक है, इसमें वर्स है यानी पोएटिक लैंग्वेज है.
और ये इस तरह से लिखा गया है कि ये शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, नॉवेला भी नहीं है, लेकिन इसमें नॉवल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि इसमें एक फोकस्ड प्लॉट है और एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो रीजन इनको मेंशन करने का इन दी इवॉल्वमेंट और इन दी एवोल्यूशन ऑफ फिक्शन इज कि ये सारी कहानियों ने इवेंचुअली कंट्रीब्यूट किया इनटू द जॉनरा ऑफ नॉवेल इटसेल्फ। फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल एपिक? इट्स यूजुअली ब्रॉड। फिर क्लासिकल एपिक की वही बात कर रहे हैं एंड इट गोज ऑन। In the romances, individual traits such as insecurity, weakness, or other facets of character come to the foreground, anticipating distinct aspects of the novel. So, individualization of the protagonist, which is the main character, the deliberately perspectival point of view, and all above the linear plot structure. अच्छा, linear plot structure क्या है? Sequential. जैसे अभी सर ग्वैन एंड द नाइट में हमने क्लियरली देखा कि सर ग्वैन एक क्वेस्ट पे जाते हैं, वो पूरा करते हैं, उसके बाद उनको दोबारा एक और क्वेस्ट पे जाते हैं, सीक्वेंशियल है। तो वो सीक्वेंस जो है उसको लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो दीज आर थिंग्स that were there in the background of how novel as a genre became a prominent one. So the novel that which emerged in Spain during the 17th century and England during the 18th century, employs all these elements in a deliberate manner. कौन से elements? जिनकी अभी हमने बात की है, and they have a deep root into the genre of the epic romances। जैसे डॉन कहीटो बहुत फेमस एक मिगुल डी कार्वांटेस का लिखा हुआ रोमांस है जिसमें शिवरलिक रोमांस दिखाया गया, यानी एक आदमी एक नाइट को दिखाया गया है कि वो कैसे being a soldier he's still having those traditional elements of a man and he woos a lady in such a manner. At the same time, Cervantes initiates a new and modified epic tradition। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, इंग्लिश मैन हेनरी फील्डिंग कैरेक्टराइजेस हिज नॉवल जोसेफ एंड्रयूज एज अ कॉमिक रोमांस। जोसेफ एंड्रयूज भी बहुत फेमस एक काम है, 1747 में लिखा गया है। जोसेफ एंड्रयूज में एक्चुअली hypocrisy of the society and the feelings of lust and how men and women are corrupt with each other, इस तरह के क्या कहना चाहिए point of views and themes को दिखाया जा रहा है। However, there are certain characters and couples they fall in love with each other and they uh, stay true to each other. So वो again epic romance में आ जाता था। बाकी सारे जो कैरेक्टर्स जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे वो कॉमिक रोमांस में आ जाता था। तो इस तरह से नॉवेल्स लिखे जाना शुरू हो गए। हेनरी फील्डिंग का एक मेंशन हो गया, जोसेफ एंड्रयूज। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो है, पामेला है रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन, क्लारिसा है, टॉम जोन्स है एंड एक्सेट्रा। अच्छा, ये सारे बेटे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट जैसे जोसेफ एंड्रयू का रेफरेंस है आपने देख लेना है क्योंकि वो रोमांस में आता है और वो मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर से उसकी बैकअप भी प्रोवाइड की जाती है। द न्यूली एस्टैब्लिश्ड नॉवल इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्म्स रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। तो अब जो नॉवल यहाँ तक एपिक के, ट्रेडिशनल एपिक, क्लासिकल एपिक के थ्रू यहाँ तक पहुंचा है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है दैट्स गोइंग टू बी रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, thereby summarizing some sort of basic innovations of the new medium। ठीक है, अब वो वहां पे कंपैरिजन कर रहा है मारियो। while the traditional epic exhibited a cosmic and allegorical dimension। allegorical और cosmic dimension का मतलब ये है कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यूनिवर्सल, allegorical यानी किसी और स्टोरी को रेफर करना। अब ये जो सर गिवेन एंड द नाइट की स्टोरी हमने अभी देखी है, ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज भी थी, तो उनको एलेगोरिकली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द मॉडर्न नॉवल डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ थ्रू ग्राउंडिंग ऑफ द प्लॉट इन अ डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल रियलिटी। द एलेगोरिकल एंड टाइपिफाइड एपिक हीरो मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं, इसका सिंपली मतलब ये है कि रियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं एक करेक्टर को। फिर फीचर्स पे आ जाते हैं। दीज फीचर्स ऑफ द नॉवल
they have intentions behind it, and that is individualism and realism, that they reflect basic socio historical tendencies. अब देखिए इंडिविजुअलिज्म क्या है कि एक करेक्टर अपना इंडिविजुअल स्टैंड लेता है, और रियलिज्म के उसमें ऐसे इवेंट्स हों जो कि एक्चुअली रियल हो। जी बेटे, गुरुतुलैन जी बेटे, क्या सवाल है? यू हैव योर हैंड मैम रेस्ड। ये जो हमें मैम ये जो आप हमें एरॉस पढ़ा रही हैं, हम्म तो ये ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर वाला जो है, हम्म इसका क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? फॉर ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाए कि फिक्शन इवॉल्व्ड थ्रू ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टू मिडल इंग्लिश लिटरेचर, फुल स्टॉप, कमेंट। तो उसमें आप क्या कमेंट करोगे? यू विल टॉक अबाउट दिस थिंग ओनली, जो अभी तक हमने बात की है कि नॉवल हमेशा से नॉवल के टेंडेंसी से नहीं निकला। पहले एपिक्स आई, एपिक नैरेटिव्स आई, पोएम्स आई, वर्स आई, और उसमें कहानियां दिखाई गई, और इवेंचुअली वो नॉवल बना। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि इन दोनों एजेस में, यानी जहां तक रोमांसेस होंगे ना नॉवल की हिस्ट्री में, जी वहां मैम। तक आप लिख दोगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आगे है, द नॉवल थस मिरर्स द मॉडर्न disregard for the collective spirit of the Middle Ages that heavily relied on symbolism and allegory. The rise of an educated middle class, the spread of printing press, and the modified economic basis. ये बेटे आपके रीजंस हैं कि नॉवल एक जॉनरा कैसे बन गया। देखिए प्रिंटिंग प्रेस आई, तो एज अ ऑथर लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि अब वो 500 पेज भी लिख सकते हैं। पहले तो पेजेस और उसको रिटेन करना, रिकॉर्ड करना वाज अ बिग टास्क, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू आसानी से प्रिंट हो सकता है, टाइपराइटर आ गया और उसे डिसेमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और मिडिल क्लासेस जो थे वो राइज हो गए थे, वो अब पुअर क्लास में नहीं थे, सो दे वर एबल टू प्रोड्यूस एज वेल। एंड इकोनॉमिक बेसिस को मॉडिफाई करने के लिए भी नॉवल को यूज किया जा रहा था। तो दिस वे ऑथर्स वर एबल टू परस्यू राइटिंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, क्योंकि उन्हें रॉयल्टीज मिलती थी। अब अगर मैंने एक छोटा सा एपिक नैरेटिव या एक शॉर्ट स्टोरी या एक नॉवल लिख दिया है, तो वो प्रिंट भी होगा, उसके पैसे भी, उसकी भी रॉयल्टीज मुझे मिलेंगी, वो डिसमिनेट यानी स्प्रेड भी होगा, उसे बेचा जाएगा जगह जगह पे, तो वो भी मुझे हेल्प करेगा। तो ये एक प्रोफेशन बन गया, एंड दैट इज वाई मिडिल एजेस के बाद कहीं पे नॉवल को एक बढ़ावा, जिसे आप उर्दू में कहते हैं, मिलना शुरू हो गया था। यहां तक बात समझ आई बेटे? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। And the term novel, however, subsumes a number of sub-genres, such as picaresque novel. अभी मैंने जो आपको सब-genres या टाइप्स बताए हैं, वो सिंपल बताए हैं, डिटेक्टिव नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, ठीक है, उसके अलावा रोमांसेस वर देयर। अब ये जो हमारा मारियो क्लारर है, वो आपको स्पेसिफिक भी बताएगा। आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुली उसने जो वर्ड्स वो चाहता है कि आप हाईलाइट करें, उन वर्ड्स को उसने बोल्ड में लिखा हुआ है। तो पिकरस का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास ऐसी एक्सप्लेनेशन हो जो सोसाइटल इवल्स और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करे। फिर हमारे पास इस तरह का नॉवल ऑफ एजुकेशन भी आ जाएगा, एपिलिस्टरी नॉवल भी आ जाएगा, हिस्टोरिकल भी आ जाएगा, न्यू जर्नलिज्म भी आ जाएगा, सेट्रिकल भी आ जाएगा। अच्छा, ये जो सारे हैं वन बाय वन विल टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डिटेक्टिव, मैंने आपको डिटेक्टिव का थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा ना, कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो, एक डिटेक्टिव हो, एक पुलिस वाला हो। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस वही बात है कि डिटेक्टिव नॉवल में मेंशन किया हुआ। तो ये मैं आपको इस इन टाइप्स के बारे में बता चुकी हूँ मेजोरिटी के। बस ये रह गया पिकर एक्स का एक रेफरेंस, आप देख लें कि वन ऑफ द रेफरेंसेस ऑफ पिकर एक्स इज हैंस जैकब्स क्रिस्टॉन वॉन। ये इनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है सिंपली जिसिमस। ठीक है, जर्मन सिंपली जिसिमस इन 1669। देन डैनियल डिफोस मॉल फ्लैंडर्स, ये बहुत फेमस है। टॉम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग, all of them they represent the specific traits of the form of prose fiction. फिर नॉवल ऑफ एजुकेशन जो है, ये रेफर करता है बाय जर्मन नेम। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी आप चेक कर सकते हैं, वो इसी तरह से आपने देख लेनी है। तो ये आपको इनको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने नोट्स बनाएं और इनकी लिस्ट बना लें, ताकि आपको अगर सारे नहीं तो दो दो याद रह जाए।
तो इवॉल्व होते होते फिर हम शॉर्ट स्टोरी पे चले जाएंगे। फिक्शन में नॉवल हमारा यहाँ तक पॉइंट पे आ जाएगा, 1976 तक हम पहुंच जाएंगे, फिर शॉर्ट स्टोरी पे चलेंगे। अब बेटे यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछें। प्लीज ब्रिंग द प्रिंट ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज फ्रॉम मारियो क्लारर, इट्स कॉल्ड चैप्टर 2। इसको आप प्रिंट करवा कर ले आए ताकि मोबाइल से पढ़ने में कोई आपको तंगी जो होती है वो ना हो। ठीक है बेटे, कोई सवाल है? Any questions? No, ma'am. Okay, now I'll take your attendance and then you're free to go. Give me a minute. आपकी जो attendance है your literary studies में है। Okay, उबैदुल्ला, बेटा ये अटेंडेंस हो रही है, आपने इस पे प्रेजेंट बोलना है। मुर्तजा खान, अली अयूब, जी मैम। मोहम्मद हमायूं, हेलो। यस मैम। निमरा नूर, जवेरिया। हेलो मैम। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। कौन है आप बेटे? मैम महनूर नवाज। हेलो मैम, मैं भी प्रेजेंट हूँ। बेटे मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन है? नाम बताएं। मैम मैं अली अयूब। ठीक है बेटे, देखो स्क्रीन पे देखो, प्रेजेंट आ रहा है ना? मैं मुर्तजा खान, मेरी प्रेजेंट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए किस कंडीशन में बैठे हुए आप। अच्छा निमरा नूर है बेटे? यस मैम। मैं भी प्रेजेंट है, मेरे जवेरिया साथ है। ईमान, जवेरिया ईमान, एक्सक्यूज मी मैम। बताएं बेटे, नाम ले ले मैम। बताओ बेटे, जल्दी बोलो। मैम उबैद, मैं अली के साथ हूँ। मैं प्रेजेंट हूँ इधर। स्क्रीन शॉट में देखे नाम है मेरा, बीच में आके नेट की वजह से वो लेफ्ट हो गया था। ये तो सारे फेक एक्सक्यूजेस है ना बेटे, लाइक मैम ऑलवेज। स्क्रीन शॉट में जाके देखे। बस बस म्यूट योरसेल्फ, गो अहेड, म्यूट योरसेल्फ। जवेरिया ईमान, अलीजा खालिद, प्रेजेंट मैम। इंतखाब आलम, प्रेजेंट मैम। महविश फरियाल, Present, ma'am. फुरुतुलैन, अब्दुल समाद, सिद्रा नजीर, प्रेजेंट मैम। मानून नवाज, प्रेजेंट मैम। नुमान तारिक, अब्दुल हफीज, प्रेजेंट मैम। सफदर हुसैन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुस्लिम, रमना अख्तर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट मैम। असगर बलोच, शहाबुल्ला, बिलाल मैम नुमान। शफी। Okay, once you're done with your attendance, please leave the meeting. जिसकी अटेंडेंस हो गई है आप मीटिंग छोड़ जाएं या अपने आप को म्यूट रखें एटलीस्ट। बिलाल शफी, यस मैम। सुंदस, प्रेजेंट मैम। शहला, प्रेजेंट मैम। सुहेल अब्बास, प्रेजेंट मैम। फहीमुद्दीन, इरशाद अहमद, रेहान शाह प्रेजेंट मैम। और बिलाल अहमद। मैम ये 24 डेट वाले अटेंडेंस में नहीं लग गए। मैम नुमान तारिक present। मैं भी प्रेजेंट हूँ, बरीरा ने। यस मैम, मैम बिलाल नुमान तारिक। प्रेजेंट मैम। मैम इट्स मी प्रेजेंट नुमान तारिक। एक्सक्यूज मी मैम। बेटे सारे इकट्ठे बोलोगे तो मुझे क्या ही सुनाई देगा। मैम आपने एब्सेंट लगा दी है नुमान तारिक लास्ट पे। एक्सक्यूज मी मैम। आप हार्वर्ड नहीं पहुंचे नुमान अभी तक?
मैम क्लास लगी थी, मैंने मैम डिसमिस छुप किया जेट कि वाली यहाँ में पे भी एब्सेंट प्रेजेंट है था। मेरे, तो मैंने मैसेज किया। प्लीज डोंट येल। जो चीख रहा है बेटे चीखो मत। चलो बेटे जिसकी अटेंडेंस होगी जाए। लीव प्लीज लीव द क्लास। अब जो चीख रहा है अब बताओ बेटे क्या एक्सक्यूज मसला मी मैम। मैम ये 24 डेट वाली पे मैं प्रेजेंट आ रेहान शाह। हाँ लेट आया था, आइंदा लेट नहीं आना है। अच्छा चलो लीव मैम द बिलाल क्लास नाउ। अहमद प्रेजेंट है मैम। लीव द क्लास नाउ। हाँ बेटे बिलाल मैम मैम आप। तो पूरी क्लास मैम बताया लास्ट था, क्लास आपने में पूछा प्रेजेंट भी था था। मैम अभी। जी कुरुतलैन मैम बताएं बेटे। आई मैं वाज प्रेजेंट प्रेजेंट हूँ मैम। बिलाल अहमद लास्ट में। सुहेल अब्बास। बेटे ऑनलाइन क्लास का भी ना एक तरीका होता है। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन रेज योर हैंड, डोंट जस्ट सॉरी येल मैम। इनटू द माइक। प्लीज सीखें इसको। अगर आपने कोई बात करनी है रेज योर हैंड। जी कुरुतलैन पहले आप पूछें। मैम हमारी मैम एक आपसे न्यू एक बात स्टूडेंट करनी आई थी। बरीरा निसार। मैम इनका भी नेम ऐड कर दें प्लीज लिस्ट में। आज इनकी हमारे साथ फर्स्ट क्लास है। बरीरा निसार। व्हाट्स रॉन्ग? यस मैम। अच्छा थैंक यू मैम। एक सेकंड बेटे, अगले जिसने हैंड रेस किया है मैं आपसे अभी क्वेश्चन लेती हूँ। लेट मी फाइनलाइज दिस फर्स्ट। जी सुहेल आप बताएं बेटे आपका क्या क्वेश्चन है। Ma'am, in previous case I was present. व्हेन व्हाट डेट? Suhail Abbas. But did you give a quiz in the last class? Ma'am, in last class, देखिए ना, you don't know what's happening in the class. Oh, you're the one who just left, who came and said कि मैं quiz नहीं दूंगा. Is that so? no, ma'am, I wasn't in the university. Sorry, ma'am. I thinking that in online class, ma'am. पता नहीं क्या कह रहे हो बेटे। अच्छा बिलाल बेटे आप क्या कह रहे हो? Sorry, ma'am. बिलाल अहमद क्या सवाल है अब पूछो बेटे। अरे अनम्यूट तो करो ना खुद को। अच्छा आवाज नहीं आ रही, राइट करो, लिखो शाबाश, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम को बोलना है माइक क्या खोल क्या दो। क्या बेटे क्वेश्चन बताओ ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी। यस बरीरा बेटे आप पूछ लो फिर। मैम हाँ बिलाल बताओ। बिलाल प्रेजेंट मैम लास्ट में, आपने एब्सेंट कर दिया है। आप बिलाल अहमद हैं कि निसार हैं? बिलाल अहमद हो मैम। अहमद है ठीक है, और निसार एब्सेंट है। अच्छा वो तो बरीरा है, सॉरी सॉरी। ठीक है एक सेकंड। ठीक है और किसी का कोई सवाल? यस बरीरा बेटे बताओ। यू हैव योर हैंड। मैम 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 और स्टूडेंट्स के भी नेम्स ऐड करने हैं। हाँ बताएं नाम बताएं। मैम मैं एक न्यू मैम स्टूडेंट हूँ और मेरा भी अटेंडेंस लगा दे। नाम बताएं बेटे। बरीरा आपकी लगा दी है मैम। मैम एक मैम सादिया असद है। सादिया सादिया असद। असद सही है, और जवाद खान। जवाद खान। मैम इन दोनों की फर्स्ट 2 क्लासेस में एब्सेंट है, बाकी में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? मेरे पास तो कभी अटेंडेंस में दिखे नहीं। मैम इनके नेम्स नहीं ऐड थे, वैसे ये लोग क्लासेस लेते थे। तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? देखे ना। मैम उन्होंने मुझे भी अभी इन्फॉर्म किया, मुझे चले पता नहीं इसको हम फिर हम ऑन कैंपस इनसे मैं बात कर लूंगी, आज की लग गई है। ठीक है था। और कोई रह गया नहीं तो प्लीज अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।